Good afternoon, participants. On behalf of Indian Railway Institute of Financial Management, Secunderabad, I extend warm welcome to this session on model schedule of powers, including latest revision of negative powers of general manager. To take up the session, we have Sri Mohammad Afzaluddin, retired senior AFA, Southern Railway, presently consultant faculty in RIFAM. Welcome, sir, and it's over to you to comment the session. Thank you, Bernard. Now slowly the number is picking up. Good afternoon all the participants and the candidates for the examination. We please tell your people that today we will be discussing the questions which can be asked in with books examination point of view. Apart from discussing a few slides about the MSOP, its sources and what does it contain, then we will be concentrating on the question and answers. So there may be a question, in the with books examination, or for that matter, even without books also they may ask some questions. So broad delegation of powers, they may like to test in without books also. In details, they may even touch with books also. There may be a question in either of these papers, with books or without books. So we will discuss those questions. So I request the participants to inform their friends immediately to log in. It's already 1:41. Okay, nevertheless, we will make the beginning. They can even join within 5-10 minutes also, because we'll be discussing this the structure of this MSOP. Then we will go to the question answer session. This there may be even a bit question in the examination, MSOP. So you may have to write what is the MSOP, how MSOP has come into existence, what is the necessity, what is the need for MSOP, what are the advantages of MSOP, all those things you can write. You can write a paragraph on this MSOP also. So MSOP, as the name suggests, it's model schedule of powers. Same railway accounts finance evening session conduct చేస్తున్నాం కదా, మార్నింగ్ కూడా అప్రూవ్ తీసుకున్నాము 11 to 10:45. మళ్ళీ నేను ఈ లింక్ సేమ్ లింక్ పెట్టొచ్చు కదా నాగేష్, కొంచెం మ్యూట్ చేసుకున్నానా? అదే లింక్ టైమింగ్స్ మారుస్తాను నేను. మామూలుగా వాళ్ళు మార్నింగ్ అదే లింక్ క్లిక్ చేస్తారు, ఎండ్ చేసినాక మళ్ళీ మధ్యాహ్నం కూడా అదే లింక్ జాయిన్ అవ్వచ్చు కదా. మిస్టర్ నాగేష్, ప్లీజ్ మ్యూట్. Okay, thank you. I request all the candidates to mute. Whenever you want to ask a question, then you can put a message. Otherwise, I am reading the messages also, so you can put the message. It unnecessarily disturbs the session. So, model schedule of powers. It is a model. Earlier, you must be having an idea that every railway used to have one schedule of power. Every railway used to have one delegation of powers. Delegation of power or schedule of powers is one and the same. So individual railways, the production units and other authorities, they used to have their own schedule of power, schedule of delegation of powers. The source again will be the same, but ठीक है. तो हर एक रेलवे में एक शेड्यूल ऑफ पावर होता था, एक डेलीगेशन ऑफ पावर्स होता था. उसमें डिफरेंट डेलीगेशन एक ही होता था, लेकिन जो नेगेटिव पावर्स हैं, जो जनरल मैनेजर के नेगेटिव पावर्स हैं, वो नेगेटिव पावर्स के अंतर्गत ही जो डेलीगेशन होता था. लेकिन किसी रेलवे में डेलीगेशन ज्यादा होता था, किसी विदिन दी नेगेटिव पावर्स, मतलब नेगेटिव पावर्स 5 करोड़ पावर्स दिए गए जीएम को, तो जीएम सभी पावर्स डेलीगेट नहीं करते थे, वो अपने पास थोड़े रख लेते थे. He used to give 2 crores to the PHODs and then remaining 3 crores he used to keep. So different procedure was followed.
different procedure was followed, different delegation was followed from one railway to other railway. आपका SOP जो हम देखते थे, अगर कंपैरिजन तो वो कहीं उसका कंपैरिजन ही नहीं होता था. वहाँ के प्रोसीजर अलग होते थे, वहाँ के डेलीगेशन ऑफ पावर अलग होता था. सो इससे बहुत सारी दिक्कतें आती थी, स्पेशली फॉर द पीपल हु आर ऑन ट्रांसफर. एक रेलवे से दूसरे रेलवे ट्रांसफर हो जाते हैं, तो यहाँ का जो प्रोसीजर उनको आदत हो चुका होता था. लेकिन once they go to other railway, then the situation and delegation is completely different. So in order to have uniformity, the MSOP, Model Schedule of Powers, has been drafted by the Transformation Cell during 2017. And then उसके बाद में फिर थोड़े consistencies थे, inconsistencies थे उसमें, तो उसको दूर करते हुए एक मॉडल शेड्यूल ऑफ पावर 2018 में इशू किया गया. So this model schedule of power has been issued, which should be adopted for. Sir, PPT is not moving, sir. PPT, I'm still discussing the introduction only. Okay, sir. Is it going now? Yes, sir, moving. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So I'm still discussing the introduction only. So MSOP was modified, and 2017 it was initially issued. Then it was modified and issued in 2018. And this was a letter was issued by board that this is the MSOP being issued for implementation of all over Indian railways, including PUs. Duly making some adjustments and redelegation of powers, which can be suited to their respective railways. ऐसा नहीं है कि आप MSOP as it is आप उसको implement कर लें, उसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं. अगर मान लो आपके पास कुछ अच्छे प्रैक्टिसेस हैं, अच्छा डेलीगेशन ऑफ पावर है, उसको बरकरार रखते हुए विद इन दिस MSOP के जो डेलीगेशन में आप उसको मॉडिफाई कर सकते थे. लेकिन सभी रेलवे में ये MSOP इतना लिबरल है, तो सभी रेलवे उसको स्ट्रेट अवे अडॉप्ट कर लिए हैं. दे हैव अडॉप्टेड दिस MSOP straight away, which should be implemented on the railway. So now when they adopt it on their railway, we should not call it as MSOP. It is the SOP of that particular railway, Schedule of Power South Central Railway. The basis is of course MSOP. Still we cannot call, when you adopt this on your railway, you cannot call still as MSOP. MSOP is the source, it's a model, and this model you have adopted for your railway. So SOP for Central Railway, SOP or delegation of powers for Central Railway, delegation of powers for Northern Railway. इस तरह इसका नाम होना चाहिए. लेकिन सभी रेलवे में आप जहां पर भी देखेंगे, वो भी सभी लोग हमारे साउथ सेंट्रल में भी वही MSOP बोलते हैं उसको, but it is a delegation of power. It is a delegation of power. It is a SOP pertaining to that railway. ठीक है. So ये जो CS है, the correction, it is correction slip. CS is a correction. CS means the correction slip. So this MSOP, what I am discussing today, that is including the latest revision. There have been some revision of powers, revision of negative powers of general manager issued through correction slip 90. So that is how the caption goes. Model schedule of powers, including latest revision of negative powers of general manager. Okay? So next we will go. You must have already attended this class earlier. If you have not attended, the source of delegation, हमारा जो MSOP है, हमारा जो schedule of power है, the source of delegation for this MSOP is, main source is the negative powers, GM's negative powers. GM's negative powers कहाँ मिलेंगे आपको? The GM's negative powers are appended in the chapter 5 of Finance Code Volume 1 as Annexure 2. There is a chapter of Finance Code Volume 1. Under that one annexure is there. So that annexure talks about the GM's negative powers. What is the negative power? See, the board has given powers to general manager. They say it is a negative power. That means these transactions, these administrative or financial transactions, you cannot sanction. All other you can sanction. The negative power is that is the meaning of the negative power. That means the items listed
transactions listed in the list of negative powers, the general manager does not have powers. The limits indicated in the negative powers, the general manager cannot sanction the expenditure. All other items can be sanctioned by the general manager. So that was in English. Now I'll tell you in Hindi. तो नेगेटिव जीएम्स का नेगेटिव पावर मतलब क्या होगा? नेगेटिव, आजकल नेगेटिव सुनने से बहुत खुशी होती है, क्योंकि अगर कोविड का अगर नेगेटिव रिपोर्ट आता है तो सब खुशी होती है. जनरली नेगेटिव का मतलब थोड़ा डिफरेंट होता है. वी वांट टू बी पॉजिटिव. जीएम्स नेगेटिव पावर इज, उसमें बोर्ड क्या करता है, एक लिस्ट देता है, लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस, लिस्ट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, लिस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांजैक्शन देता है. यानी आपको एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स देता है, आपको फाइनेंशियल पावर्स देता है, वर्क्स में रिलेटेड, मिसलेनियस रिलेटेड, ये सभी लिस्ट देता है. लिस्ट देके बोलता है कि भाई ये है, आप सैंक्शन नहीं कर सकते. जो फॉलोइंग जो आइटम्स हैं, जो फॉलोइंग सीलिंग लिमिट है, उसको सैंक्शन नहीं कर सकते हैं. फिर क्या कर सकते हैं? इसके अलावा, इसके अतिरिक्त आप कुछ भी सैंक्शन कर सकते हैं. उसका मतलब ये है. तो उसमें मान लो नेगेटिव पावर्स में एक रिस्ट्रिक्शन है कि जीएम कैन अप्रूव for sanction for administrative approval to a proposal for inclusion in the budget costing beyond 2.5 crores requires the sanction of railway board. तो फिर रेलवे बोर्ड कहां से 2.5 crores के ऊपर उनका सैंक्शन है, तो मतलब 2.5 तक आप कर सकते हैं, उसका मतलब वो. सो दैट इज कॉल्ड. अब अगर आप जीएसटी देखेंगे, हम जीएम नेगेटिव पावर्स का एग्जांपल देंगे, हम उसके वो भी करेंगे. वी विल आल्सो सी द क्वेश्चन आंसर्स. ठीक है. अब जीएसटी देखेंगे, उसमें भी फॉलोइंग आइटम्स डज नॉट अट्रैक्ट द जीएसटी. दैट इज अ नेगेटिव लिस्ट, the negative list on which the GST is applicable. So the following items do not attract the GST. So एक लिस्ट देता है, 100 आइटम लेते हैं उसमें, तो उस पे जीएसटी नहीं लगता है, बाकी के सब पे जीएसटी लगता है. तो उसी तरह ये जीएम्स नेगेटिव पावर्स जो लिस्ट हैं, वो जो लिस्ट में जो भी आइटम्स है, जो लिस्ट में जो भी लिमिटेशंस है, फाइनेंशियल सीलिंग्स है, उसके अंतर्गत आप उसको आप नहीं सैंक्शन कर सकते हैं, इसके बाहर आप कर सकते हैं. ठीक है. दैट इज दी मीनिंग ऑफ दैट नेगेटिव पावर्स. ठीक है. सो वी विल सी द एग्जांपल आल्सो. तो ये एज यू नो आप लिख सकते हैं अभी नेगेटिव पावर्स ऑफ जनरल मैनेजर. व्हाट इज नेगेटिव पावर्स ऑफ जनरल मैनेजर? नेगेटिव पावर्स ऑफ जनरल मैनेजर is a list of items, is a list of activities which cannot be sanctioned by the general manager. The list of activities, the list indicating the financial ceilings cannot be sanctioned by general managers. And this is available in our finance code, volume 1 under chapter 5. So within this GM's negative powers, this MSOP has been made. इसको लिख सकते हैं. हाँ, किसी ने पूछा भाई कैन यू प्रोवाइड द लेटेस्ट लिस्ट पर्टेनिंग टू जीएम. हम पर आप पहले क्लास सुन लीजिए, उसके बाद में सब आपको क्लियर हो जाएगा. आपको लिस्ट प्रोवाइड करेंगे, आपको एग्जांपल्स भी दिखाएंगे, आपसे क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे. ठीक है. सो ये तो हो गया, अभी सोर्स हो गया. और ये कौन सा किसी ने बनाया एमएसओपी? इनिशिएटिव ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन सेल ऑफ रेलवे बोर्ड इन डेलीगेशन ऑफ मोर पावर्स टू डीआरएम्स एंड ब्रांच ऑफिसर्स एंड द जनरल फाइनेंशियल रूल्स भी इसमें प्रावधान किया गया. सो देयर मे बी अ क्वेश्चन ऑन जनरल फाइनेंशियल रूल आल्सो. आपको तो पता है जनरल फाइनेंशियल रूल इज इन एडिशन टू द एमएसओपी. अगर जनरल फाइनेंशियल रूल्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एप्लीकेबल है, ऑल डिपार्टमेंट्स के लिए एप्लीकेबल है, वो छोटे सा बुकलेट है 48 पेजेस 50 पेजेस का. उसमें अगर एक ट्रांजैक्शन लिखा जाता है कि दिस कैन नॉट बी सैंक्शन बाय द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, दैट मींस दैट कैन नॉट बी सैंक्शन इवन फॉर रेलवेज आल्सो. तो हम जीएफआर को भी ध्यान में रखते हुए हमारा जो एसओपी बनाया गया है, और एसओपी जो डेलीगेशन ऑफ पावर्स हम जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो जीएफआर को भी आपको ध्यान में रखना है. ठीक है. सोर्सेस ऑफ डेलीगेशन, ये कोड्स मैनुअल्स. अपार्ट फ्रॉम दैट नेगेटिव पावर्स ऑफ जनरल मैनेजर, we have codes and manuals, various codes and manuals like general administrative finance traffic establishment, engineering, stores, other सभी चीजें इसमें आपको, these are all the source
for delegation of powers. आप अगर आपका MSOP खोल के देखेंगे तो आप रिमार्क्स कॉलम में कहीं लिखा होता है एस्टैब्लिशमेंट कोड, कहीं लिखा होता है इंजीनियरिंग कोड, कहीं लिखा होता है कमर्शियल कोड, कहीं लिखा होता है स्टोर्स कोड. So all these are the source for the MSOP apart from the negative powers of general manager. और एक कमर्शियल सर्कुलर इशू के रेलवे बोर्ड डायरेक्टरेट, ट्रैफिक डायरेक्टरेट है, और ट्रांसफॉर्मेशन सेल के जो सर्कुलर इशू होते हैं, रेलवे बोर्ड के ऑर्डर्स होते हैं, डिसीजंस होते हैं, JPOs होते हैं, बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ अदर रेलवेज, क्लैरिफिकेशन इशू, कभी कभी बोर्ड क्लैरिफिकेशन करता है. सो ऑल दिस फॉर्म पार्ट ऑफ द सोर्स फॉर डेलीगेशन ऑफ पावर्स. क्वेश्चन आ सकते हैं, व्हाट इज MSOP, व्हाट इज द सोर्स ऑफ पावर्स अंडर दिस MSOP एंड व्हाट इज द नीड. तो आपको आपको होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए व्हाट इज MSOP, हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज द नेगेटिव पावर्स, व्हाट इज द सोर्स ऑफ पावर्स फॉर दिस MSOP एंड व्हाट इज द नीड फॉर MSOP. व्हाई नॉट वी हैव इंडिविजुअल SOP ऑफ रेलवेज. So the need for an MSOP is the transformation cell immediately after formation transformation cell in the railway board. जैसे कि it is considered as one of the directorates in the railway board. Transformation cell जब पीयूष गोयल हमारे मिनिस्टर थे तो वहां से ये शुरू हुआ है ये ट्रांसफॉर्मेशन सेल. तो लोगों ने फर्स्ट टास्क गिवन टू देम वाज द MSOP, प्रिपरेशन ऑफ MSOP. तो लोगों ने पहले पूरे जो रेलवेज में स्टडी किया, उसके बाद में उसको कंसोलिडेट करके एक टेम्पलेट अडॉप्ट करके उसको इम्प्लीमेंट कर दिया. तो व्हाट इज द नीड? सेटिंग अप ऑफ अ बेंचमार्क and uniformity in implementation of the decisions. Uniformity, there has to be uniformity in delegation, there has to be uniformity in implementation of decisions. ऐसा नहीं कि साउथ सेंट्रल में एक delegation in northern में ऐसा नहीं. All over Indian Railway the delegation will be same, the procedure will be same. The procedures were also cumbersome. Procedure also have been simplified in this MSOP, and the work process has been speeded. And then familiarity of the orders, rules and procedures for the officers and transfer from one railway to other railway. And the purpose is empowering frontline officials with adequate administrative financial powers, greater autonomy to the divisions. This is important. पहले क्या होता था, बहुत सारे proposals, division वाले proposals headquarters को भेजते थे, sanction of the general manager, sanction of the AGM, sanction of the PHOD. उससे बहुत सारा delay होता था. So now all the divisions have been given greater autonomy. Now, for very few, only 5% of the proposals goes to board. Goes to general manager. All other proposals can be sanctioned, can be cleared within the powers of the DRM. Full powers have been given to DRMs and PHODs. Now, proposals hardly goes to the general manager. They have introduced some reforms. Transparency in the procedures and processes. There should be transparency. Your MSOP is like a guide. If you see any delegation of powers, who is empowered to sanction? If somebody is empowered to sanction, what are the conditions he should satisfy? What are the sources for that delegation? Everything is available in your remarks column if you see that. So apart from this MSOP, you can also have additional delegation as per the local requirement. I told you initially. Suppose if the board has given some 5 crores powers, the GM and FNCO finds that these are very liberal powers, this can be restricted. So instead of 5 crores, they can even give 3 crores. Or even among the officers also, powers have been redelegated. मान लो powers redelegate हो गए हैं, J grade को 1 crore, SA grade को 2 crores और PHOD को 3 crores, GM के पास 5 crores. So this J grade के powers 1 से 2 भी कर सकते हैं, provided it is not beyond the limits stipulated by the railway board. Okay, so that was now we will see the preamble. This is also very important. Preamble of the MSOP. Preamble of the MSOP. हमारा preamble of the constitution रहता है. Preamble हर book में होता है, हर एक important document में होता है. So इसका preamble क्या है MSOP का?
अगर आप पढ़ेंगे तो दिस MSOP covers delegation to all PHODs, all CHODs, HODs, DRMs, ADRMs, CWMs, chairman of railway recruitment boards, and all other branch and field officers. ये सभी के लिए उसमें प्रोविजन दिया गया है। ऐसा नहीं कि केवल PHODs को दिया गया है, केवल HODs को दिया, ऐसा नहीं है। सभी को, ऑल लेवल ऑफिसर्स इंक्लूडिंग JGR ऑफिसर्स, फील्ड ऑफिसर्स, ब्रांच ऑफिसर्स, सबको इसमें डेलीगेशन दिया गया। And you know what is CHOD? CHOD is the principal head of the department. CHOD is the coordinating head of the department. कई थोड़े ऐसे छोटे डिपार्टमेंट्स होते हैं, लाइक RPF है, सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है, कभी कभी PHOD को पोस्टिंग नहीं होती, वहां पर दूसरे HODs होते हैं, 2-3 HODs होते हैं। और 2-3 HOD जो भी अवेलेबल है डिपार्टमेंट में, उसमें सीनियर मोस्ट जो भी होता है उसको CHOD कहते हैं, कोऑर्डिनेट। he will be acting as coordinating HOD. जब PHOD नहीं होता है एक डिवीजन में, एक जोन में, तो CHOD will exercise the powers of PHOD। ये भी प्रोविजन दिया गया है। इससे पहले जो SOPs था उसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता था, क्योंकि पावर्स दिए जाते थे PHOD को और PHOD होता नहीं था, तो यहाँ से फिर AGM के पास, GM के पास जाते थे। Now it has been clearly laid down that wherever there is no PHOD posted, the powers of PHOD can be exercised by the CHOD. ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। इसमें डेलीगेशन टू CJs भी है कि PHOD नॉट पोस्टेड CHOD कैन एक्सरसाइज द पावर्स है। और इसमें और एक कॉन्सेप्ट है, पर्सनल सैंक्शन ऑफ जनरल मैनेजर। हमने देखा, वी हैव सीन व्हाट इज द नेगेटिव पावर, व्हाट इज द पर्सनल सैंक्शन ऑफ जनरल मैनेजर। पर्सनल सैंक्शन क्या है, उनके पर्सनल बेनिफिट के लिए सैंक्शन, ये नहीं है। पर्सनल एक रेलवे में जो बड़े रेलवे होते हैं वहां पर क्या होता है, एक GM भी होता है, एक एडिशनल जनरल मैनेजर भी होते हैं। जनरल मैनेजर होते हैं, एडिशनल जनरल मैनेजर होते हैं, दोनों होते हैं। कई एडिशनल जनरल मैनेजर नहीं होते, केवल GM होते हैं। तो केवल जब GM होते हैं, देयर इज नो AGM, ऑल द प्रपोजल्स रिक्वायरिंग GM सैंक्शन विल गो टू GM खुद करते हैं सबको। लेकिन जब जो बड़े रेलवे है, नॉर्दर्न रेलवे, सेंट्रल, ऐसे रेलवे है, साउथ सेंट्रल, इसमें AGM भी होते हैं और GM भी होते हैं। तो मतलब अब जो भी मान लो एक 50 प्रपोजल्स हैं, एक महीने में 50 प्रपोजल्स आते हैं हेडक्वार्टर्स को, ऑल देयर राइट दी फाइनेंस वाले लिखते हैं कि दिस रिक्वायर्स द सैंक्शन ऑफ जनरल मैनेजर। तो व्हेन इट इज रिटन दैट दिस रिक्वायर्स द सैंक्शन ऑफ जनरल मैनेजर, ये AGM सैंक्शन कर सकते हैं, एडिशनल जनरल मैनेजर सैंक्शन कर सकते हैं, उनको GM तक जाने की जरूरत नहीं। फिर कई जब लिखते हैं हम कि दिस रिक्वायर्स द पर्सनल सैंक्शन ऑफ जनरल मैनेजर, तो जब AGM नहीं कर सकते हैं उसको, उन केसेस में द एडिशनल जनरल मैनेजर कैन नॉट सैंक्शन द प्रपोजल। इट हैज टू बी सैंक्शन ओनली बाय द जनरल मैनेजर। इट हैज टू बी पर्सनली सैंक्शन बाय द जनरल मैनेजर। इट कैन नॉट बी सैंक्शन बाय अदर देन जनरल मैनेजर। तो जनरल पर्सनल सैंक्शन का मतलब समझ लिया? इसका मतलब यह है कि जो प्रपोजल केवल GM ही कर सकते हैं, AGM नहीं कर सकते। जो ऑर्डिनरी प्रपोजल्स हैं व्हिच रिक्वायर्स द सैंक्शन ऑफ जनरल मैनेजर, वो पूरे एडिशनल जनरल मैनेजर कर सकते हैं, उनको GM तक जाने की जरूरत नहीं। लेकिन अब आप बोलते हैं कि ये इसका पर्सनल सैंक्शन चाहिए, मतलब केवल GM ही कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो हमने देखा नेगेटिव पावर्स, हमने देखा पर्सनल सैंक्शन भी देखा, ठीक है। और इस MSOP की खूबी क्या है, इसमें हर एक आइटम आप देखेंगे, हर एक आइटम, एवरी आइटम हैज सम डिस्क्रिप्शन, हैज सम रिमार्क्स। उसमें ये भी लिखा होता है, दिस आल्सो विल बी रिटन दैट वेदर फाइनेंस कंकरेंस इज रिक्वायर्ड और नॉट इज इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच आइटम। हर एक आइटम के बाद में आपको इमीडिएटली लिखता है दिस रिक्वायर्स द फाइनेंस कंकरेंस, दिस रिक्वायर्स द कंकरेंस ऑफ एसोसिएट फाइनेंस, दिस रिक्वायर्स द कंकरेंस ऑफ FNCO, ऐसा लिखा होता है। अगर मान लो कहीं एक 4-5 आइटम छूट गए होंगे कहीं, उन जगह अगर कुछ भी नहीं लिखा है, इफ नथिंग इज रिटन, कुछ भी नहीं लिखा है, इफ नथिंग इज रिटन देन इट रिक्वायर्स द कंकरेंस। ये भी इसमें लिखा हुआ है प्रीएम्बल। अब जब डेलीगेशन की बात होती है, बॉसेस से डिस्कस होते हैं, तो बोलते सर ये नहीं, इसमें कंकरेंस इसमें लिखा नहीं है, कुछ नहीं लिखा है, तो इसीलिए इसको कंकरेंस चाहिए। तो वो पूछेगा फिर कहाँ लिखा है? सर ये MSOP के प्रीएम्बल में लिखा है, ठीक है।
So the delegation of powers instructions issued by railway board. अच्छा, और एक इम्पोर्टेंट इसमें चीज ये है, तो एक मान लो अभी MSOP हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हम फरवरी में हैं, कल एक ऑर्डर इशू होता है, कल मतलब प्रीवियस डे, आज क्या है, आज वेडनेसडे है, कल ट्यूसडे को एक ऑर्डर इशू हुआ था बोर्ड से कि दो मेंबर कमेटी होगी 10 करोड़ तक। अब तो 5 करोड़ तक 2 मेंबर कमेटी है, अब 10 करोड़ तक 2 मेंबर कमेटी होगी। कल इशू हो गया, लेकिन उसका प्रोविजन इसमें नहीं है, MSOP में अभी उसका करेक्शन इशू नहीं हुआ, MSOP में उसका प्रावधान हुआ नहीं, तो फिर क्या करें टेंडर्स? तो उसमें ये लिखा हुआ है, द डेलीगेशन ऑफ पावर्स इंस्ट्रक्शंस इशूड बाय रेलवे आर टू बी इंप्लीमेंटेड इमीडिएटली विदाउट वेटिंग फॉर ए करेक्शन स्लिप। अब करेक्शन स्लिप को आने की जरूरत नहीं है सर, आप इसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आज के दिन। आप 2 मेंबर ने बैठेंगे अप टू 10 करोड़ तक, 10 करोड़ तक जो टेंडर है उसमें 2 मेंबर बैठ सकते हैं। ये भी बहुत बढ़िया इसका प्रोविजन प्रावधान इसमें प्रीएम्बल में है, ठीक है। दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अवेलेबल इन दी प्रीएम्बल ऑफ द SOP। और पार्ट्स ऑफ SOP है वर्क्स मैटर्स, मेडिकल मैटर्स, मिसलेनियस मैटर्स, स्टोर्स मैटर्स, कमर्शियल मैटर्स, एस्टैब्लिशमेंट मैटर्स, ये पूरे पार्ट्स हैं, पार्ट्स ऑफ MSOP है। और इसमें GM से नेगेटिव पावर जो लिस्ट है, GM से नेगेटिव पावर्स वो कनेक्शन 1 है। GM का जो नेगेटिव पावर है, GFR रूल्स अगेन इलाबोरेट मैं आपको बाद में बताऊंगा, GFR के बारे में बताऊंगा। तो GM से नेगेटिव पावर्स लेटेस्ट रिवीजन Annexure 1 is also part of the MSOP. Delegation of powers to DRMs and PHODs, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन सेल ने एक डेलीगेशन दिया था DRMs को and PHODs को, so that is available as Annexure 2 of the MSOP. So these are the parts of MSOP and the contents of the MSOP, ठीक है। इसमें बहुत सारे इम्प्रूव डेलीगेशन है पावर्स, ये फुल पावर्स पहले डेमरेज वॉरफेयर चार्जेस के लिए वेबल ऑफ डेमरेज एंड वॉरफेयर चार्जेस। क्वेश्चन आ सकता है आपको, who is competent to sanction the waiver of demurrage and warfare charges? अभी AGM कर सकते हैं, earlier it was personal sanction of general manager, अभी AGM कर सकते हैं। और रेंटिंग ऑफ स्पेस फॉर ओपनिंग ऑफ PRS, नॉन रेल हेड मतलब जहां पर रेल लाइन नहीं है, एक टाउन है, इंपॉर्टेंट टाउन है, वहां पर एक PRS सेंटर खोलना है। पहले क्या होता था, पर्सनल सैंक्शन आते GM के पास आते थे, अभी नाउ DRM इज गिवन पावर्स। और PHOD, CHOD, DRMs have full powers to accept earning tenders। पहले जो earning tenders थे AGM के पास, GM के पास जाते थे, अभी now full powers have been given to DRM। In fact, DRM भी full powers हैं, CHOD, PHOD भी full powers हैं। अगर हेडक्वार्टर से टेंडर बुलाता है तो PHOD करेगा, डिवीजन में टेंडर बुलाता है तो DRM करेगा। रिफंड ऑफ फेयर्स कवर्ड बाय टैरिफ रूल्स, इट इज 20,000, DRM कर सकते हैं। कमर्शियल लाइसेंसिंग ऑफ रेलवे एंड DRM कर सकते हैं। पहले ऑल दिस प्रपोजल्स यूज्ड टू कम टू हेडक्वार्टर्स। और ये कंडेमनेशन ऑफ MNP के बारे में भी पावर्स हैं, इसकी खास जरूरत नहीं है तो आप लोगों को, लेकिन अगर पढ़ सकते हैं तो इसमें पढ़ लो। MNP प्रपोजल्स, GM के पास पावर्स थे पहले, only MNP only used to be sanctioned by general manager, but now the DRM, the PHOD can sanction. PHOD can sanction up to 50 lakhs. The powers have been redelegated. और DRM CWM को भी पावर्स दिए गए हैं up to 20 lakhs. SAG officers को दिए गए up to SG officers को up to 10 lakhs. GM can sanction procurement of 2-wheelers for RPF post. और important है monetary limit of tools and plants. पहले हम tools and plants है, small office equipment like Xerox machine, PCs हैं, आपके जो UPS हैं, ये सभी हम, if it is costing more than 1 lakh, we used to say that this requires the sanction of general manager and inclusion in the MNP program. लेकिन आज के दिन all these items can be charged to revenue up to 10 lakhs. 10 लाख तक का Xerox machine, 10 लाख तक का आपका office equipment, 10 lakh small tools and plants can be charged to revenue. It need not be processed through MNP. This is a major development.
और सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स लाइक द डेलीगेशन इज लाइक एनी अदर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन जब सर्विस कॉन्ट्रैक्ट या आउटसोर्सिंग ऑफ मेंटेनेंस ऑफ मेजर स्टेशन है, न्यू दिल्ली स्टेशन, आपका बॉम्बे स्टेशन, कोलकाता, वहां पर आउटसोर्सिंग एक्टिविटी होती है जो हाउसकीपिंग का। मान लो एक टेंडर खत्म हो गया, टेंडर जो 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 वेंडर है वो भाग गया, जो उसका जो एक्टिविटीज पूरे ठप हो गया, जब इमीडिएटली DRM कैन फाइनलाइज द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट इवन ऑन कोटेशन बेसिस अप टू 100 crores टू इट्स टू हैव ए स्टॉप गैप अरेंजमेंट। जब तक टेंडर फाइनलाइज नहीं होता है तो DRM हैज फुल पावर्स, ही कैन अवॉइड वर्क ऑन कोटेशन बेसिस। अभी मान लो किसी ऑफिसर को रेलवे बोर्ड जाना है, फ्लाइट पे जाना है, तो पहले जे ग्रेड ऑफिसर्स ही जा सकते थे रेलवे बोर्ड को। अभी तो एनी ऑफिसर कैन ट्रैवल टू रेलवे बोर्ड विद द सैंक्शन ऑफ जनरल मैनेजर। अगर नॉन गेस्टेड स्टाफ को भेजना है तो फिर बोर्ड को जाएगी प्रपोजल। GM DRM में आउटसोर्स प्रीवियस एक्टिविटी in case of vacancies। ये जो हायरिंग ऑफ व्हीकल है, बहुत रिस्ट्रिक्टेड पावर्स थे पहले हायरिंग ऑफ व्हीकल्स। नाउ PHOD, CHOD, DRM, SAG have full powers to hire a vehicle even up to SSC level, even up to supervisory level he can hire a vehicle। ऐसा नहीं, पहले क्या होता था, जब अगर व्हीकल आप सरेंडर करेंगे ही then only you could have hired a vehicle, but nowadays if there is need, if the PHOD is satisfied, if the DRM is satisfied, a vehicle has to be provided for a non-gazetted officer for a supervisory level, he can sanction. Those powers have been given to the DRMs and PHODs। ठीक है जी। अब देखते हैं ओवरऑल द मेन डेलीगेशन इन द MSOD। हम अब देखते हैं कि हाईलाइट्स अभी लेटेस्ट रिवीजन ऑफ नेगेटिव पावर्स, जो नेगेटिव पावर्स लेटेस्ट रिवीजन हुआ है अंडर करेक्शन स्लिप नंबर 90। में जो करेक्शन स्लिप वाला जो लेटर है, जो नेगेटिव पावर्स करेक्टेड नेगेटिव पावर्स है, उसको भी मैं आपसे शेयर करूंगा। तो उसमें जो मेन आइटम्स है, उसका जो लेटर है, जो उसका प्रियम्बल ये कहता है कि दी आइटम्स सो दी आइटम्स, पहले जो नेगेटिव पावर्स था और इस नेगेटिव पावर्स में क्या डिफरेंस है। So the items have been updated by incorporating the amendments already issued. The items which have lost relevance have been deleted from this negative list. The items appearing in various parts of earlier delegation have been consolidated. उसमें parts को consolidate कर दिया गया, segregate कर दिया गया. The numbering system has been streamlined so that coding of items in files becomes easier. Too many details and notes have been done away with. The items on which separate detailed instructions from railway board exist have been either omitted, यानी मतलब 2-3 पेज के इंस्ट्रक्शन है उसको रिपीट कर दिया गया है, कहीं कहीं उसको हटा दिया है। The items on which separate detailed instructions from board exist have been either omitted or only brief reference has been given. The items which are not covered in this delegation will be governed by the existing codal provisions। उसके बाद उसमें इंडेक्स है एस्टैब्लिशमेंट मैटर्स, वर्क्स मैटर्स, लीगल मैटर्स, मिसलेनियस मैटर्स, कमर्शियल मैटर्स, ये जो नेगेटिव पावर्स का इंडेक्स। हाँ, तो हम पहले एक एस्टैब्लिशमेंट मैटर पहले थोड़ा ब्रीफली देंगे, हम सभी आइटम डिस्कस नहीं करता हूं मैं, फिर हम ज्यादा टाइम इसमें देंगे कि जो क्वेश्चन आंसर्स में देंगे। इसमें जो नेगेटिव पावर्स का जो है एस्टैब्लिशमेंट मैटर्स, उसमें ये कहता है कि क्रिएशन ऑफ परमानेंट टेम्पररी वर्क चार्ज पोस्ट बोथ गेस्टेड एंड नॉन गेस्टेड। बहुत बड़ा डेलीगेशन है, बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्टेड डेलीगेशन है, बहुत बड़ा नेगेटिव डेलीगेशन है। मतलब आज के दिन जनरल मैनेजर कैनॉट क्रिएट ए परमानेंट पोस्ट इवन इफ इट इज नॉन गेस्टेड।
The general manager cannot create a temporary work charge post. The general manager cannot create any revenue post also. दवाई है. Please mute your audios, please. So revival of sanction post kept in abeyance. मतलब अगर आपके पास अगर sanction post है 2 साल तक vacant रहा, उसके बाद आप उसको फिर रिवाइव नहीं कर सकते, वो लैप्स हो जाता है. उसको रिवाइव करने के लिए फिर बोर्ड के पास जाए. अब देखिए आपको व्हाट इज नेगेटिव पावर. नेगेटिव पावर बोर्ड मान लो एक क्वेश्चन आएगा, हु इज एम्पावर्ड टू सैंक्शन ए टेम्पररी पोस्ट ऑफ जेई जूनियर इंजीनियर. हु इज एम्पावर्ड टू सैंक्शन ए टेम्पररी पोस्ट ऑफ जेई. तो इसके मतलब इसका क्या हो गया यहाँ पर, क्रिएशन ऑफ परमानेंट टेम्पररी वर्क चार्ज पोस्ट बोथ गस्टेड एंड नॉन गस्टेड. इसका मतलब हमें यहाँ पर इससे पढ़ना है, सैंक्शन ऑफ हायर अथॉरिटी इज रिक्वायर्ड. हम इस लाइन को पढ़ना है. इस लाइन के साथ इस लाइन जो पहली लाइन है, सैंक्शन ऑफ हायर अथॉरिटी इज रिक्वायर्ड फॉर क्रिएशन ऑफ परमानेंट टेम्पररी वर्क चार्ज पोस्ट बोथ गस्टेड एंड नॉन गस्टेड. मतलब ये इसमें नहीं आता है. मतलब क्रिएशन ऑफ ए टेम्पररी वर्क चार्ज पोस्ट जीएम नहीं कर सकते हैं, तो ये जाएगा बोर्ड को. Who is empowered to revival a sanction post kept in abeyance or remaining vacant for more than 2 years? Up to 1 year GM कर सकते हैं. 2 years के ऊपर है तो फिर बोर्ड को जाएगा. सैंक्शन ऑफ हायर अथॉरिटी जाएगा. लोअर अथॉरिटी यहाँ पर जीएम नेगेटिव पावर्स में लोअर अथॉरिटी को नहीं, जीएम है, और जो हायर अथॉरिटी है रेलवे बोर्ड. तो इस तरह ग्रांटिंग ऑफ प्रोविजनल पेमेंट हम जो अपने सैलरी बिल्स पास करते हैं, जो बंदे हमारे वो लोग उनके पास सैंक्शन नहीं होता है, यानी एक्सटेंशन नहीं मिलता है, सैंक्शन नहीं होता है, तो वो 3 months तक, only 3 months they can allow the salary bill. If it is beyond, please mute your audios. Granting of provisional payment beyond 3 months. Hello. हाँ जी. ठीक है. This is called the कौन है भाई? Sir, better mute on, sir. हाँ please. Sir, creation. मैं कर दूंगा टेस्ट. I'll do that. I've done, sir. I've muted. Yes, कर दिया. ठीक. तो अभी समझ में आ गया कि ये how to read the negative clause. So we have to read with this sentence. Sanction of higher authorities required. इससे पढ़ना है. हमने देखा है जो पूरे मैटर्स हैं. अभी एक देखते हैं. Sanction of higher authority is required for the acceptance of resignation of a gazetted officer. इसको लेके चलते हैं. Sanction of higher authority is required. प्लीज थोड़ा ध्यान से देखिए. Sanction of higher authority is required for the acceptance of the gazetted officer, for the deputation of a railway servant outside India, for the waiver of the cost, full or partial, of training of railway employee, for permitting a railway servant below junior scale to travel by air on duty. So for permitting a railway servant below the junior scale to travel by air, whose sanction is required? Sanction of higher authority is required. Board is required. तो हम इसके साथ पढ़ेंगे तो आपका आंसर करेक्ट होगा. अगर मान लो इसको भूल जाएंगे तो आप देखेंगे अभी आपका क्वेश्चन आ गया, हु इज एम्पावर्ड टू सैंक्शन फॉर ए चीफ ओएस टू गो टू दिल्ली बाय फ्लाइट ऑन ड्यूटी. तो आप देखेंगे, ऐसा देखते जाएंगे तो आपको ये दिखेगा परमिटिंग रेलवे सर्वेंट बिलो जूनियर स्केल टू ट्रैवल. हाँ सर, यहाँ पर आंसर है. इसको टिक करेंगे आप. ये 4-5 ये गलत है. इसको इससे पढ़ना है, ऊपर वाले सेंटेंस से पढ़ना है. Sanction of higher authority is required for permitting a railway servant. Higher authority कौन है? बोर्ड है. लोअर अथॉरिटी कौन है? जीएम है. जीएम के हायर अथॉरिटीज बोर्ड है, तो इसका बोर्ड होगा. मतलब यहाँ पर देखो, परमिटिंग ए रेलवे सर्वेंट बिलो जूनियर स्केल बोर्ड करेगा, फिर अबो जूनियर स्केल एंड अबो जीएम करेगा.
इसका मतलब समझ आया ना, सैंक्शन ऑफ हायर अथॉरिटी। कई लोग पूछे सर कैसे, हाउ टू रीड दिस डेलीगेशन ऑफ पावर्स, हाउ टू रीड दिस नेगेटिव पावर्स, सो दिस इज हाउ इट शुड बी रेड। अगर हम अभी अगर आपको कुछ भी दिक्कत है तो फिर से हम उसको फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। वर्क्स मैटर्स में भी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। अब देखिए, हु इज एम्पावर्ड टू, मैं म्यूट कर दूंगा, सॉरी अनम्यूट करूंगा। ये तो ठीक है। मैंने आपको अनम्यूट करके बात करने का परमिशन इसमें प्रोविजन दिया हूं। आप अनम्यूट करके मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप मुझे आंसर दो। ये आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाएगा कि whose sanction is required to give an administrative approval to a work of ROB costing 2 crores. Whose administrative approval is required, whose sanction is required for according administrative approval for a work costing 2 crores. कौन बोल सकते हैं? GM जनरल मैनेजर, रेलवे बोर्ड सर, रेलवे बोर्ड, हाँ, जो भी जनरल मैनेजर, GM का GM, क्योंकि नहीं GM ही है। GM को क्या है, दूसरे हम PH 30 की बात कर रहे हैं, यहाँ पर प्लान 30 की बात कर रहे हैं। प्लान 30 में GM के पावर्स 1 करोड़ है। बाकी के जो प्रपोजल्स हैं, बाकी के जो प्लैनेट्स हैं वो 2.5 करोड़ है। लेकिन ये प्लैनेट 30-100 ये लेटेस्ट करेक्शन है, और जो न्यू स्टाफ वेलफेयर वर्क्स हैं वो भी 1 करोड़ है, और ये भी 1 करोड़। तो GM वो लमसम वर्क्स 2.5 कर सकते हैं, लेकिन इन प्लैनेट में, इस प्लैनेट में वो नहीं कर सकते हैं, तो वो जाएगा रेलवे बोर्ड को। सो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आएंगे, ठीक है। और देखते हैं, हाँ बोलिए, बताइए। हेलो सर, बताएं। हाँ सर, ये बोल रही थी, जैसा हम लोग एग्जाम में आता है, जैसे आपने क्वेश्चन आपने पूछा कि GM को पावर है, रेलवे बोर्ड, ओके, मैं आपको केवल बोर्ड है। समझाने के लिए मैं इसमें हेलो, दिखाया हूँ, और हम आपको क्वेश्चन भी देंगे। अब इसके बाद हम रेलवे बोर्ड के पर सर ऐसे ही यदि कोई सर GM को पावर जो है तो उसका आइटम नंबर लिखना पड़ता है सर। लिखिए ना, B1 to C। ओके, In terms of B1 to C, this requires the sanction of railway board, ऐसा, ठीक है। और वर्क्स मैटर्स में दूसरा भी है, हम देखते हैं बाद में। ये वर्क्स मैटर्स कॉन्ट्रैक्ट्स के ग्रांट ऑफ मोबिलाइजेशन एडवांस, अब ये आपके साथ रहेगा, बिग बुक्स में आपके साथ रहेगा ये। ये तो करेक्शन ठीक है। आपकी आवाज क्लियर नहीं है मैडम, ठीक है। एनीवे हम उसके बाद डिस्कस करेंगे। तो ये जो नेगेटिव पावर्स हैं ये आपके साथ रहेगा एग्जामिनेशन में। दिस इज अलाउड टू बी कैरीड, ठीक है। आपका MSOP भी कैरी कर सकते हैं, और ये जो लेटेस्ट भी रख लीजिए आप, लेटेस्ट जो GM डेलीगेशन में अपलोड करूंगा उसको भी साथ रखिए। और जब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो ये MSOP देखिए, और ये आपके जो नेगेटिव पावर्स, जनरली MSOP देखने की जरूरत नहीं है, आप नेगेटिव पावर्स में आंसर आ जाएगा, ठीक है। लीगल मैटर्स का है, कमर्शियल मैटर्स में है। आपको ये देखना है पहले कौन से पार्ट में आता है, कमर्शियल में आता है, पार्ट्स में आता है, एस्टेब्लिशमेंट में आता है, आप उसमें देख लीजिए, ठीक है। और रेलवे एसेट्स कौन बेच सकता है? रेलवे एसेट्स, द सेल ऑफ एनी पोर्शन ऑफ ए रेलवे लाइन, एनी आइटम ऑफ ऑथराइज्ड रोलिंग स्टॉक, ये कौन कर सकता है? दिस इज द सैंक्शन ऑफ हायर अथॉरिटी इज रिक्वायर्ड फॉर सेल ऑफ एनी पोर्शन ऑफ रेलवे लाइन। Alteration in the authorized stock of all descriptions, authorized कौन करेगा? बोर्ड करेगा। Sanction of higher authority is required, okay।
अच्छा, परचेज ऑफ ए मोटर कार, whose sanction is required for purchase of a motor car, motorboat, truck, or any other vehicle? Whose sanctioning powers are required? Railway board. Railway board, right? Railway board. Railway board. Correct. अच्छा, मैं Railway board. मैं एक क्वेश्चन दूं, अभी बोलूंगा आपको. Who can sanction 40 lakhs? Who can sanction 40 lakhs in a year? Who can sanction 40 lakhs in a year for the ceremonial occasion in connection with the visit of a prime minister? प्राइम मिनिस्टर आए, विजिट करें किसी रेलवे को, तो रेलवे मिनिस्टर आए किसी भी रेलवे में विजिट किए हैं, एक्सपेंडिचर हो रहा है 40 लाख का. 40 लाख का जो एक्सपेंडिचर है वो कौन सैंक्शन कर सकता है बताएं? रेलवे बोर्ड. Railway board. इनका लिमिट भी 5 लाख ही है, पर ओकेशन लिमिट 5 लाख है, और जो एनुअल सीलिंग भी वो भी 40 लाख से कम ही है. ठीक है, ठीक है. इसमें अगर जो एग्जिस्टिंग कैश एंड पे अरेंजमेंट्स हैं और उसके बाद हम आउटसोर्सिंग करना चाह रहे हैं, यू वांट टू आउटसोर्स द कैश एंड पे, कलेक्शन ऑफ कैश फ्रॉम द स्टेशंस, डोर कलेक्शन ऑफ द कैश फ्रॉम द स्टेशंस. अब बैंक को एंगेज करेंगे और बैंक वाला जाके स्टेशन से कैश कलेक्ट करके लेके आएगा. तो ये क्या, दिस इज अ डिविएशन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग कैश एंड पेड अरेंजमेंट्स. सो इसका भी सैंक्शन बोर्ड करेगा. ठीक है, ठीक है. तो करेक्शंस कैसा होंगे एमएसओबी में? एमएसओबी करेक्शन कैसे होंगे? मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड बाय वे ऑफ फर्दर डेलीगेशन. अगर बोर्ड डेलीगेशन देता है तो फिर करेक्शन की जरूरत पड़ती है. रेटिफिकेशन जीएम करना चाहे तो फिर करेक्शन की जरूरत पड़ती है. मॉडिफिकेशन ड्यू टू चेंजेस इन द कोडल प्रोविजंस, करेक्शन की जरूरत पड़ती है. न्यू डेलीगेशन नॉट कवर्ड इन एमएसओबी, करेक्शन की जरूरत पड़ती है. लेकिन जो ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए एमएसओबी में करेक्शन की जरूरत नहीं है. प्रोसीजर क्या है? पीएचओडी, डीजीएम इज द नोडल ऑफिसर फॉर एमएसओबी. पीएचओडीज क्या करते हैं, वो लोग अपना प्रपोजल इनिशिएट करते हैं, कंकरेंस लेते हैं, फिर वो डीजीएम को भेजते हैं. डीजीएम क्या करते हैं, सभी पीएचओडी को उनके व्यूज पूछते हैं उसके बारे में, और उसके बाद में एक ड्राफ्ट करेक्शन स्लिप वेट किया जाता है फाइनेंस से. उसके बाद में वो जीएम को पुट अप करते हैं, जीएम पर्सनल अप्रूवल लेकर फिर करेक्शन स्लिप इश्यू करते हैं. इफ इट इज डायरेक्ट डेलीगेशन, करेक्शन कैन आल्सो बी इश्यूड बाय रेलवे बोर्ड. करेक्शन कैन आल्सो बी इश्यूड बाय रेलवे बोर्ड. ठीक है. सो नाउ वी विल सी सम क्वेश्चंस. आप आंसर कर सकते हैं इसको. ठीक है, उसका आंसर भी बाजू में है, लेकिन आप जो दूसरा स्लाइड आप इस चीज को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मत देखिए, खाली केवल सैंक्शन पे देखिए. सैंक्शन पे यहाँ देखिए, हु सैंक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर क्रिएशन ऑफ ए वर्क चार्ज पोस्ट ऑफ एससीजी ऑफिसर. कौन करेगा? रेलवे बोर्ड करेगा, क्योंकि क्रिएशन ऑफ ए पोस्ट, टेम्पररी पोस्ट और वर्क चार्ज पोस्ट और एनी पोस्ट, गेस्टेड नॉन गेस्टेड जो भी है, सभी रेलवे बोर्ड है. क्योंकि ये एज पर डेलीगेशन ऑफ पावर्स जो अभी करेक्शन स्लिप 90 इशू किया गया है, उसमें रिस्ट्रिक्शन दिया गया है कि भाई जनरल मैनेजर आप सैंक्शन नहीं कर सकते हैं, तो सैंक्शन ऑफ हायर अथॉरिटी इज रिक्वायर्ड. ठीक है, तो इसमें आपको एक क्वेश्चन आ सकता है. आई एम एक्सपेक्टिंग सर जो पहले से चला आ रहा है वर्क चार्ज पोस्ट, उसके लिए चला रहा है तो सैंक्शन है ना आपके पास, तो जीएम कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हैं, वो चलता रहता है. वो रेवेन्यू पोस्ट है, चार्ज पोस्ट है, उसके एक्सटेंशन के लिए मान लो बोर्ड ने 5 साल के लिए सैंक्शन कर दिया, तो 5 साल तक चलेगा. उसके ऊपर फिर बोर्ड जाना पड़ेगा एक्सटेंशन के लिए. पहले एक्सटेंशन के लिए पावर्स होते थे हमारे पास, अभी नहीं. तो रेवेन्यू का पावर है जीएम को, रेवेन्यू का हाँ, रिन्यूअल का पावर जीएम को है. रिन्यूअल का पावर्स भी नहीं है यहाँ पर. क्या इसमें रेवेन्यू पोस्ट को रिन्यूअल करने की जरूरत नहीं है. अच्छा, हाँ, परमानेंट पोस्ट को रिन्यूअल करने की जरूरत नहीं है. नाम जो वर्क चार्ज पोस्ट है उसको रिन्यू करने की जरूरत पड़ती है. वो रिन्यूअल करने के लिए भी बोर्ड पे जाना पड़ता है. अच्छा, ठीक. अच्छा, हु सैंक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रांट ऑफ ए कैश ऑर्डर. मान लो कैश अवार्ड देना चाह रहे हैं, जेएजी ऑफिसर है, सीनियर डीएफएम को कैश अवार्ड देना चाह रहे हैं, तो किसका पावर में आता है?
वो रेलवे बोर्ड जाएगा, क्योंकि जीएम कैन सैंक्शन ओनली अप टू 5,000। आपके जो जीएम अवार्ड्स आते हैं ना, जीएम अवार्ड्स, उसमें मैक्सिमम अमाउंट मिलता है 5,000 रुपए का। उससे ज्यादा सैंक्शन नहीं कर सकते जीएम। तो 5,000 से भी एक भी रुपया ज्यादा होता है तो देन इट हैज टू गो टू रेलवे बोर्ड। सैंक्शन ऑफ हायर अथॉरिटी इज रिक्वायर्ड। ओके, देन हु सैंक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर सैंक्शनिंग हानडोरियम? 20,000 से ऊपर हानडोरियम में किसका सैंक्शन लगता है? द सैंक्शन ऑफ हायर अथॉरिटी इज रिक्वायर्ड, रेलवे बोर्ड। जीएम कैन सैंक्शन अप टू 15,000 तक कर सकते हैं वो। ये 20,000 है इसलिए बोर्ड जाएगा। Who sanction is required for acceptance of resignation of a senior scale officer? पहले सीनियर स्केल ऑफिसर्स का जो रिसिग्नेशन है वो जीएम कर सकते थे, लेकिन अभी जो करेक्शन स्लिप आया है उसमें बोला है कि भाई रिसिग्नेशन ऑफ एनी गेस्टेड ऑफिसर, मतलब वो जूनियर स्केल होने दो, वो असिस्टेंट स्केल होने दो, सीनियर स्केल होने दो, द रेसिग्नेशन कैन नॉट बी एक्सेप्टेड बाय द जनरल मैनेजर, इट हैज टू बी सेंट टू द रेलवे बोर्ड। Whose sanction is required for purchase of a staff car? हमने देखा है वो बोर्ड जाएगा। इट हैज टू बी इंक्लूड इन द एमएनपी। एमएनपी में इंक्लूड करना पड़ेगा, बोर्ड सैंक्शन करना पड़ेगा। उसके बाद में फिर द डीआरएम कैन परचेज ए कार, मोटर कार। Whose sanction is required for hiring of vehicle for official use of the field executive officers on criticality of the need? डीआरएम कर सकते हैं। पहले जो पावर जीएम को थे, अभी डीआरएम के पास पावर्स हैं, वो कर सकते हैं। Whose sanction is required for permitting air travel to supervisory staff? Board. The general manager can approve up to junior scale. Guested officer तो जीएम कर सकते हैं, उसके नॉन गेस्टेड फिर बोर्ड पे जाएगा। Whose acceptance is required for accepting tenders and contracts for a value of 600 crores? 600 crores कौन करेगा? Acceptance कौन करेगा? 600 crores टेंडर कौन करेगा? GM has full power. हाँ, जीएम जीएम या तो पहले क्या होता था, 100 करोड़ के ऊपर जीएम को जाते थे। अभी नाउ जीएम हैज फुल पावर्स। GM has full power. यस। अब ये जो लिस्ट है ना, ये आप देख लेके पढ़िए थोड़ा, जो एक बार उसका थोड़ा रीडिंग दे दीजिए, आपके क्वेश्चन आप पक्का कर सकते हैं, 100 मार्क्स ले सकते हैं, 100% ले सकते हैं। Who sanction is required to the right of amount 3 lakhs which can be recovered from staff? It is board. Who sanction is required for approving deputation of railway servant outside India? It is railway board. Who sanction is required for grant of a reward of rupees 10,000? DRM. DRM can grant up to 50,000 in each case. कब? In case of avert of the accident and save passengers. Passengers को सेव करने के लिए, accident को avert करने के लिए किसी पर्सन ने बहुत सारा योगदान दिया, उसकी वजह से एक्सीडेंट रुक गया है, तो उसको DRM GM can grant up to 50,000. DRM can grant up to 10,000 rupees as a cash award. मान लो कहीं ट्रैक रेल टूट गया है, तो देखा है कोई बंदा, तो क्या करा, वो अपना लाल शर्ट निकाल के वहां लगा दिया। सो 15 मिनट्स लाल शर्ट निकाल के लगा दिया, तो ट्रेन रुक गई, वो एक्सीडेंट से बच गया। तो इमीडिएटली डीआरएम उसको, जो आदमी जिसने एक्सीडेंट बचा दिया, उसको 10,000 इमीडिएट सैंक्शन करेंगे और जीएम को रिकमेंड करेंगे 50,000 देंगे, क्योंकि इट सेव्ड द एक्सीडेंट, इट सेव्ड द लाइफ ऑफ द पैसेंजर्स। Who sanction is required to? ऐसी चीजें बोर्ड को जाने की जरूरत नहीं है, ऐसी चीजें पावर्स दिए गए हैं डीआरएम। हाँ, तो who sanction is required for filing of defending an appeal in सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट में अपील करना है तो ये समझ लीजिए कि रेलवे बोर्ड है, ठीक है। अगर मान लो हाई कोर्ट में करनी है तो जीएम कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाना है तो फिर ये रेलवे बोर्ड करेंगे। सैंक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रांट ऑफ मोबिलाइजेशन एडवांस, रेलवे बोर्ड करेंगे, क्योंकि जीएम के पास पावर है 10%, अगर 20% देना है तो भी रेलवे बोर्ड जाएगा। टू सैंक्शन रिक्वायर्ड टू ग्रांट ऑफ एन एडवांस ऑफ 100%, ये भी जीएम कैन सैंक्शन अप टू 75%, तो ये भी बोर्ड जाएगा। टू सैंक्शन रिक्वायर्ड फॉर टू द पेमेंट ऑफ क्लेम सेटल्ड बाय आर्बिट्रेशन, 10 लाख तक क्या किसी भी अमाउंट जीएम सैंक्शन कर सकते हैं। However, if the payment is more than 10 lakhs, the details has to be reported to railway. हाँ, अभी क्या है, एक आरी का प्रोजेक्ट है, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट, न्यू लाइन है, डबलिंग है, गेज कन्वर्शन है, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, ये क्या मेजर प्रोजेक्ट्स है, these are major projects. So ये मेजर प्रोजेक्ट्स को डायरेक्ट पीडब्ल्यूडी में डाल सकते हैं क्या? नहीं डाल सकते, क्योंकि
इन प्रोजेक्ट्स को टेकअप करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जो देगा वो बोर्ड ही देगा। जीएम के पास इन प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं है, दूसरे प्लैनेट्स के लिए है। 16 में कर सकते हैं, 31 में कर सकते हैं, दूसरे जो प्लैनेट कस्टमर अम्यूनिटीज है उसमें कर सकते हैं। लेकिन न्यू लाइन्स, डबलिंग, गेज कन्वर्जन और रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट अगर प्रोसेस करना है तो उसको पीडब्ल्यूपी में करने की जरूरत नहीं है। उसको एक सर्वे रिपोर्ट, हमने इससे पहले आपको क्लास में बोला था, तो सर्वे रिपोर्ट बनाएंगे और बोर्ड को भेजेंगे। बोर्ड अगर अप्रूव करता है तो डिमांड नंबर 2 में देगा उसको। बाकी के जो भी वर्क्स हम प्रपोज करते हैं पीडब्ल्यूपी में, और पीडब्ल्यूपी 100 वर्क्स जाते हैं बोर्ड को, उसमें 20 शॉर्टलिस्ट होते हैं, दैट विल बिकम दी एफडब्ल्यूपी। एंड वो जो 20 वर्क्स हैं वो बजट में आते हैं अंडर डिमांड नंबर 16। Whose approval is required for taking up a lump sum work or OOT work costing rupees 2.5 crores? उसके पास GM can approve, but he has some restricted powers. उनके पास powers दो चीजों में, planned 5100 and 3000, he has powers up to 1 crore. All other planets he has up to 2.5 crores each. OOT works में भी सेम powers हैं, लेकिन जब OOT works प्रपोज कर रहे हैं, OOT works सैंक्शन कर रहे हैं, तो उनको ये कंफर्म होना चाहिए कि जो फंड जो रिक्वायरमेंट है वो विद इन दी आइटमाइज्ड वर्क से उसको रीअप्रोप्रिएट कर सकते हैं, जब ये वो ओटी सैंक्शन कर सकते हैं। ओटी सैंक्शन करने के फुल पावर्स है जनरल मैनेजर को, वो कितने भी अमाउंट कर सकते हैं रीच 2.5 करोड़ के अंतर्गत अंदर, वो कितना भी सीलिंग, उनको सीलिंग है, स्काई इज द लिमिट, यू कैन सैंक्शन एनी अमाउंट। बट वो जो सैंक्शन कर रहे हैं, वो जो सैंक्शन कर रहे हैं अमाउंट, उसको क्या है, इट शुड बी रीअप्रोप्रिएटेड विद इन दी वर्क। आपके पास जो ऑलरेडी ग्रांट है उसमें से, जो वर्क्स में ग्रांट है उसमें से रीअप्रोप्रिएट करना पड़ेगा उसको। Whose sanction is required for procurement of plant machinery 70 lakhs? बोर्ड, क्योंकि जीएम के पास 50 लाख के पावर्स हैं, उसके ऊपर फिर बोर्ड को जाएगा। Whose technical sanction is required for detailed estimate of rupees 1200 crores? GM can sanction a detailed estimate irrespective of the cost. कितना भी cost है वो GM कर सकते हैं। No detailed estimate is required to be sent to board for sanction. Only restriction for GM is he cannot sanction more than 20% due to other than escalation. मतलब scope 20% से ज्यादा नहीं कर सकते हैं। वो जो escalation है, cost escalation, वो कितना भी कर सकते हैं, लेकिन scope में 20% से ज्यादा नहीं कर सकते। मतलब कोई नया कार्य ऐड नहीं कर सकते हैं सर? हाँ जी, हाँ जी, मतलब कोई नया कार्य ऐड नहीं कर सकते हैं? नया कार्य कौन सा था वो? एस्केलेशन बियॉन्ड 20%। हाँ, जो नया कार्य नहीं कर सकते हैं, स्कोप जो ऑलरेडी कनेक्टेड वर्क है वही कर सकते हैं। एक नया कार्य, आप करेक्ट, यू आर राइट, नया कार्य जो स्कोप से बाहर है, जो स्कोप से बाहर है, वो बाहर कितना है, मोर देन 20% है। अगर बाहर है कार, नया कार्य है 20% के अंदर है तो कर सकते हैं, 20% से अगर बाहर है तो नहीं कर सकते। ठीक है, यस यस। Whose sanction is required for the sale of a land worth rupees 2.59 crores? लैंड को बेचना है 2.5 करोड़ से थोड़ा नीचे, कौन कर सकता है, बोर्ड ही करेगा, क्योंकि सेल ऑफ लैंड के लिए जीएम को पावर्स नहीं है। लीज पे दे सकते हैं लेकिन सेल नहीं कर सकते। Whose sanction is required to write off irrecoverable loss 6 crores? रैली बोर्ड करेगा। Whose sanction is required to permit material modification? मेटेरियल मॉडिफिकेशन का पावर कितना है, 2.5 करोड़। जीएम 2.5 करोड़ कर सकते हैं। हमने क्वेश्चन क्या पूछा, 3 करोड़ का है, 3 करोड़ पे बोर्ड जाएगा, रैली बोर्ड जाएगा। Whose sanction is required for entering into consultancy contract of rupees 5 crores? Full powers to GM. Whose sanction is required for introduction of NS item costing 4 lakhs in a contract? जे officer जो एक्सेप्ट करता है, जो जे वो कर सकता है। Whose sanction is required for licensing of railway line for sidings and connectivity? DRM, पहले GM के पास आता था, अभी DRM के पास। Whose sanction is required for renting of a space for opening of PRS non-railhead location? DRM. Whose sanction is required for providing a new ETS? DRM. Whose sanction is required for accepting 51 crore earning tender? DRM. Whose acceptance is required for a service contract of 99 crores? GM full powers, DRM has 100 crores. DRM can enter into contract on quotation basis also. ठीक है, और देखते हैं बूट, अगर बूट पे प्रोजेक्ट देना है तो जिसको बस पावर्स है। Whose sanction is required to take up a project on boot basis? DRM.
whose sanction is required for grant of ex gratia payment. आप एक काम करिए, केवल DRM मत लिखिए, उसमें आप जो नेगेटिव जो पावर्स हैं उसमें जाके उसका आइटम कोड करिए, फुल मार्क्स आएंगे। ऐसा भी लिखिए तो फुल मार्क्स आना चाहिए, वो ऐसा भी लिखिए अगर हो सकता है। Who is empowered to re-engage a retired? हाँ जी, सर वही पूछ रहे हैं हम लोग। हाँ, इसमें क्या है, DRM in terms of annexure 2 of the MSOP, और जो इससे पहले जो हमने GM बोर्ड का बोला था उसमें in terms of the annexure 1 of MSOP। अब जो नेगेटिव पावर्स है वो annexure 1 है। सीएस प्लांटिंग लिखेंगे सर, सीएस प्लांटिंग हाँ लिख सकते हैं। सर वो अच्छा ये खत्म करेंगे, उसके बाद में फिर आप क्वेश्चन आंसर करते हैं 5 मिनट। और ये बूट बेसिस है, बूट बेसिस जी पहले DRM के बाद DRM कर सकते हैं। Who is empowered to re-engage retired? The scheme has been withdrawn by board। आज एक डेलीगेशन आया आज के दिन, the GM can re-engage retired state government officials, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स नहीं, रेलवे ऑफिशियल्स नहीं, स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो हैं, उनको री-एंगेज कर सकते हैं फॉर सर्वे पर्पस। आज के दिन आया हुआ। Who is empowered to invite accept global tenders for stores? PCM कर सकते हैं। Who is empowered to approve spot purchase? GM DRM कर सकते हैं। Who is empowered to sanction advance reimbursement of medical expenses 1 crore? कितना भी पावर्स है, जनरल मैनेजर फुल पावर्स, ट्रांसप्लांट के लिए, reimbursement के लिए सभी फुल पावर्स है जनरल मैनेजर। Who is empowered to empanel hospital? GM है। Who is empowered to for an AMC of 5 crores? full powers to DRM है, GM के जाने जरूरत नहीं। Who is empowered to sanction? अच्छा when I say the DRM and the PHOD, आप either MSOP रेफर करेंगे और annexure 2 of the MSOP रेफर करें। Who is empowered to reappropriate of funds from one planet to other planet is railway board। ठीक है, so this was the presentation. Now we will go for the build, own, operate and transfer। ये correct है, boot। Boot means build, own and operate and transfer। ठीक है, so now questions please। आप अनम्यूट करते जाइए, क्वेश्चन पूछिए। GFR रूल संक्षेप में थोड़ा बताइएगा 5 लाइन में, GFR रूल क्या है? हाँ, GFR रूल एक है, मैं GFR को भी शेयर करने की कोशिश करूंगा। कोशिश क्या करूंगा ये जी सर। GFR इज जनरल फाइनेंशियल रूल्स। यस सर। हमारा जो रेलवे बजट था अभी 2017 में, जब से हम रेलवे बजट प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमारा जो गवर्नमेंट में मिल गए हैं। सो वी आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट नाउ, वी आर नॉट एनी मोर सेपरेट एंटिटी, सब कमर्शियल एंटिटी अभी नहीं रहा। तो वी आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट नाउ। कमर्शियल एक्टिविटीज करते हैं लेकिन वी आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, तो इसलिए हम हमारा रेलवे बजट सबमिट नहीं करते हैं। तो जब तक हमारे जो फाइनेंस कोड वॉल्यूम 1, फाइनेंस कोड, हमारे जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन, जितने भी रूल्स रेगुलेशन, जितने भी डेलीगेशन ऑफ पावर्स, ये सभी वी यूज टू फॉलो आवर ओन कोड्स एंड मैनुअल्स एंड नेगेटिव पावर्स। लेकिन जब से हम गवर्नमेंट में वी हैव कंसीडर्ड आवरसेल्फ एज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, हमें एक एडिशनल रिस्पांसिबिलिटी आई है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो दूसरे डिपार्टमेंट्स ये जनरल फाइनेंशियल रूल्स उनकी छोटी मोटी है वो उन्हीं को फॉलो करते हैं। हमारे पास तो सैकड़ों मैंने हंड्रेड्स ऑफ सर्कुलर्स आते हैं, हंड्रेड्स ऑफ डेलीगेशन आते हैं, तो रिस्ट्रिक्शंस है हर जगह। हमारे रिस्ट्रिक्शन कैसा काम करना है, क्या, ये सभी चीजें अवेलेबल है। उनके पास केवल एक 50 पेजेस की बुक है। तो हमें ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है रेलवे को, गवर्नमेंट नाउ प्लीज फॉलो दी जनरल फाइनेंशियल रूल्स आल्सो। Apart from your MSOP, apart from your codal provisions, you should also follow the general financial rules applicable to the central government departments। तो उसमें क्या है, उसमें भी यही चीजें हमारे जो MSOP में है मोस्टली, जैसे कि बजट कैसा प्रोसेस होना है, प्रोसेस करने के लिए किसका पावर चाहिए, किस रीअप्रोप्रिएशन के लिए किसका चाहिए,
और कॉन्ट्रैक्ट किस प्रकार के होते, कॉन्ट्रैक्ट एंटर होने के लिए किसका सैंक्शन चाहिए, स्पॉट परचेस के लिए क्या चाहिए, कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी, आपने कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी पढ़ा होगा। वो कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी हमारे जो फाइनेंस स्कूल में कहाँ से लाए थे, हम वहां से ही लाए थे, जनरल फाइनेंशियल रूल्स से उठा के लाए थे। तो आपको जनरल फाइनेंशियल रूल में आपको जो कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी है, तो इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं इसमें। तो हमारे इंस्ट्रक्शंस ये दिए, please follow the principles of the general financial rules apart from your MSOP, apart from your own rules and regulations and stipulations. ठीक है, next. हाँ बोलिए। सर नमस्कार। नमस्ते। इसलिए वो क्वेश्चन आया था, ग्रांट ऑफ मोबिलाइजेशन एडवांस ऑफ 10% या ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्क्स, या इसका आंसर क्या होगा सर? अभी तो जीएम है 10%, वो 10% तक कर सकते हैं ना जीएम, बट सर उसका आंसर टेंडर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी, ये सर B3A में दिया है, B32A में मोबिलाइजेशन एडवांस एक्सेस ऑफ 10%, एक्सेस बट जुड़ा हुआ था जो आपने अभी दिया है, बट इसका आंसर TA बनाया है, तो फिर इसमें कैसे क्या होगा? उसमें अगर आप स्पेसिफिक एमएसओपी में है, एमएसओपी में स्पेसिफिकली है टेंडर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी, तो आप टेंडर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी लिख सकते हैं, वो कोड करिए आप। नहीं सर, रेलवे बोर्ड कैश ऑन अप्रूवल सर, रेलवे बोर्ड कैश ऑन अप्रूवल सर, पूछने दो रहा भाई, कौन पूछ रहा है? मेरा जो पूछ रहा है उसको पूछने नहीं दे रहे। अरे सर ये रेलवे बोर्ड का ये आंसर था, TA, टेंडर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी। तो अगर रेलवे बोर्ड का टेंडर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी बताया, अगर नेगेटिव पावर में ये लिखा हुआ है टेंडर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी, और कहीं दूसरे लेटर में लिखा हुआ है टेंडर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी, तो आप उसको कोड करके लिख सकते हैं। अगर उसमें नहीं है तो आप केवल उसमें से जाइए, अब आपके नेगेटिव लिस्ट ऑफ आइटम्स है ना, उसमें चले जाइए आप। अगर आपको क्लियरली मालूम है कैश ऑन अप्रूवल सर, तो उसमें चले जाइए। सर दिक्कत ये है कि मैं 2 नंबर से फेल हुआ हूँ और ये क्वेश्चन मेरा गलत कर दिया, मैंने GM मारा था। अच्छा, तो अभी क्या मारना सर अगले साल? अभी क्या करो, अभी आपका जो वर्क्स मैटर्स में मोबिलाइजेशन एडवांस का सेपरेट आइटम है जी, तो उसको कोड करिए। मोबिलाइजेशन एडवांस का जो आइटम है उसमें है, तो उसको कोड करिए, और उसमें जो भी 11A, हाँ जी, वो सर आपका 11A वर्ड लिखा जो आपने बताया है। MSOP 11A। हाँ 11 में हुआ ना वर्क्स मैटर्स में। यस सर। ऐसा लिखिए, नहीं तो ऐसा लिखिए, आपका नाम जी वीरेश कुमार। गिरीश, आप ऐसा लिखिए कि in terms of the negative powers, this can be sanctioned by GM. However, redelegation has been given under MSOP by data number so and so. This can even be sanctioned by the tender accepting authority. ऐसा लिखिए। सर कैश ऑन अप्रूवल whose for required sir? ओके सर, थैंक यू। Cash on sir. Cash on. अच्छा, you want to hire a cash on? Yes sir, yes sir. Cash on can be hired by with the approval of the PFA. No, DFM sir. GM not required sir. PFA, Principal Financial Advisor, PHOD. GM not required sir. सर हायर करने का अधिकार CDFM को भी है। Senior DFM, actually the first time it has to go to PFA. The subsequent Sir, time this can be done by the division. First time if you are hiring, outsourcing, no, cash and approval, you want to hire, so it requires the PHOD's approval first time. Okay? Hello sir. PF enough sir. PFA. Okay sir. और सर हाँ जी, सर कोई करेक्शन स्लिप इशू करने का प्रोसेस क्या है सर? करेक्शन स्लिप इशू करने के बारे में मैं एक स्लाइड में दिया हूँ। पहले क्या करते हैं, किसी डिपार्टमेंट में नेसेसिटी होती है तो एक प्रपोजल बना के अपने PHOD के पास भेजते हैं। PHOD इसको एग्जामिन करके वो अपने डिवीजन वालों से पूछ लेता है कि भाई ये मेरे पास एक प्रपोजल आया था ब्रांच ऑफिसर से, क्या आपको ओपिनियन क्या है। अगर मान लो PHOD राजी होता है इस करेक्शन से तो वो एक प्रपोजल भेजेगा FNCO को, PFA के पास उसको एग्जामिन करके देने के बाद फिर DGM के पास जाएगा, तो एग्जामिन करेगा। DGM इज ए नोडल ऑफिसर,
तो उसके बाद में करेक्शन स्लिप बना के फिर फाइनेंस पोस्टिंग हो जाएगा। पोस्टिंग होने के बाद DGM जी विल पुट अप फाइल टू जनरल मैनेजर पर सैंक्शन। उसके बाद में वो सैंक्शन करेगा तो करेक्शन स्लिप इशू हो जाएगा। एंड द करेक्शन स्लिप कब हो जाएगा? जबकि आपका जो डेलीगेशन है, आपका जो चेंजेस है नेगेटिव पावर्स ऑफ द जनरल मैनेजर। ठीक है, जीएम का पर्सनल सेंशन होगा उसमें। बिल्कुल बिल्कुल पर्सनल, बिल्कुल। नेक्स्ट प्लीज। जो नेक्स्ट क्लास है मेरे ख्याल से 5-4 तारीख को है, उसमें मिसलेनियस टॉपिक्स हैं। आपको कुछ स्पेसिफिक आइटम होना है, मिसलेनियस टॉपिक, उस पर हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको बोलिए मुझे ये आइटम चाहिए, हमें ये आइटम चाहिए, हम उसको डिस्कस करेंगे। नहीं तो मेरे हिसाब से बना के लाऊंगा जो मिसलेनियस टॉपिक्स हैं उसके लिए। सर इंडिपेंडेंट चार्ज क्या होता है सर? इंडिपेंडेंट चार्ज पोस्ट जी। हाँ, अभी आप डिवीजन में अगर काम कर रहे हैं, कई वहाँ पर एक जे ग्रेड ऑफिसर होता है, एक आपका सीनियर स्केल ऑफिसर होता है, उसके नीचे जो जूनियर स्केल ऑफिसर्स होते हैं। तो जे ग्रेड ऑफिसर को ब्रांच ऑफिसर बोलते हैं। जे ग्रेड ऑफिसर कहीं कहीं होता नहीं, मतलब अकाउंट्स में भी नहीं होता है कभी कभी, मतलब वहाँ पर सीनियर डीएफएम पोस्टिंग नहीं होती है, डीएफएम की पोस्टिंग हो जाती है। कभी वर्कशॉप अकाउंट्स ऑफिस है, वहाँ पर जे ग्रेड ऑफिसर नहीं होता है, कभी डब्ल्यू हो जाता है। सो व्हेन देयर इज नो जे ग्रेड ऑफिसर, the DFM or the senior scale officer will be independent charge officer. He is the senior scale independent charge. Generally independent charge किसके पास होता है? Independent charge होता है J grade के पास. In the absence of J grade officer, the senior scale officer can be given the independent charge. अच्छा, सीनियर स्केल अफसर कर सकता है। सीनियर स्केल होने दो, J grade सॉरी जूनियर स्केल भी होने दो। अगर मान लो कहीं कहीं आपको पता होगा, कहीं अपने वर्कशॉप ऑफिस में एओस भी होते हैं, उनको सीनियर स्केल नहीं होता है, तो एओ भी बना सकते हैं इंडिपेंडेंट चार्ज। ठीक ठीक सर, ओके, थैंक यू। ठीक है, एनीबॉडी एल्स? अगर कोई टॉपिक चाहिए मिसलेनियस टॉपिक, आप ग्रुप में डाल देना सर, इन टॉपिक्स पे आप बताएं हमें, तो हम नेक्स्ट टाइम आपका जो मेरे ख्याल से मेरा लास्ट क्लास है, तो हम उसमें आपको कवर करेंगे। जैसे कि वर्क्स रजिस्टर से आपका जो बाकी के जो भी आइटम है एक्सपेंडिचर सेक्शन पे। ठीक है सर, नमस्कार सर। नमस्ते जी, बोलिए सर। वेरिएशन इन क्वांटिटी 40% एक्सेस सर, तो उस स्थिति में हम अगर लिखते हैं कि एक्सेप्टिंग ऑथोरिटी और आपका जो है एसओपी का जो है 9A कोड करते हैं, तो क्या सर इसमें फुल नंबर मिलेगा? अभी हेलो सर, हाँ बोलिए, लेटर फिनिशर, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए पहले 50 करोड़ का बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए। सर वेरिएशन इन क्वांटिटी 40% एक्सेस, तो देखिए, तो उस स्थिति में सर हम जो है MSOP 9A कोट करते हैं और एक्सेप्टिंग ऑथोरिटी लिखते हैं, तो क्या सर वो 2 नंबर का 2 नंबर मिलेगा ना? बिल्कुल, लेकिन आपको ना, आपको जो इंडिविजुअल जो जोनल लेवल के, डिवीजन लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। जहां तक खाली DRM लेवल तक पूछ सकते हैं, बहुत ज्यादा से ज्यादा। आपको रेलवे बोर्ड, GM, नहीं तो AGM, नहीं तो फिर DRM, ये इस लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं। लोअर लेवल के नहीं पूछते, जनरली नहीं पूछते हैं। अगर पूछते हैं तो फिर आप देख लीजिए, आपको तो पता है कौन सा आइटम कहाँ जाता है, वर्क्स मैटर्स, मिसलेनियस मैटर्स, कमर्शियल मैटर्स, वो तो पता है आपको। तो थोड़ा एक 5-10 मिनट आप उसको कर लेंगे तो आप उसको कवर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। ठीक है देन। Sir, your last 2 class PP has not been uploaded for 3. हाँ ठीक है, कर दे। सर कल वाला जो पढ़ाई हुआ था वो भी नहीं दिख रहा था, उसको भी थोड़ा PPT अपलोड करवा देते। ठीक है। और एक मैं कल जो एक क्लास लिया था, जो यानी फ्लो चार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर, वो भी इसको भी कर दूंगा, क्योंकि उसमें भी आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। फ्लो चार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर जो QA के लिए बनाया था मैं, तो उसको भी हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस?
सर राइट ऑफ लॉस ऑफ 2 लाख रुपीज सर। कौन सा एक बार 2 लाख रुपीस बोलिए। जी सर, प्रपोजल टू राइट ऑफ लॉस ऑफ 180,000 इन ए केस वेयर डैमेज वाज caused ड्यू टू फ्लैश फ्लड्स। अच्छा, यानी whose responsibility is that? इसमें बोला सर यस सर। अच्छा, ये कब का है? ये 2015 का सर। अच्छा, मुझे शेयर करिए, मेरे नंबर पे शेयर करिए, मैं उसको फिर पढ़ लेंगे, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके सर जी, कहीं कहीं लिखा है नॉन NFSAG मतलब नॉन फंक्शनल सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड, तो ये क्या होता है सर? हाँ, तो अभी जिस तरह आप हमें अभी आपको जो एएस है 1% सीनियर एएस आर बिकमिंग सॉरी 1% एएस आर बिकमिंग सीनियर एएस, उनको 4.8 दिया जा रहा है। ठीक है, तो 4.8 इसका मतलब ये नहीं कि वो सेक्शन ऑफिसर है, वो सीनियर अकाउंट्स असिस्टेंट है। उसी तरह जो एसए ग्रेड ऑफिसर्स हैं जी अभी जो जे ग्रेड सिलेक्शन ग्रेड ऑफिसर्स है, उनको प्रमोशन नहीं आ रहा है एसए ग्रेड का, लेकिन उनका टाइम हो गया, उनका जो टाइम स्केल है ना वो हो गया, तो वैकेंसी नहीं है, तो उनको क्या पे प्रोडक्शन दे रहे हैं, उनको बोले नॉन फंक्शनल दे रहे हैं। मतलब आप यू कैन नॉट एक्सरसाइज द पावर्स ऑफ द एसएजी, बट वी आर गिविंग यू दी ग्रेड, हम आपको ग्रेड पे दे रहे हैं। तो एसएजी का ग्रेड पे दिया जाएगा, लेकिन एसएजी के फंक्शंस नहीं करेंगे, एसएजी के सैंक्शंस नहीं करेंगे। अच्छा, उनकी पावर नहीं मिलेगा एसएससी का, एसएजी का पावर नहीं मिलेगा, पैसा मिलेगा। जी जी जी, ठीक ठीक, ओके, थैंक यू सर। ठीक है, नागेश सर एक बात पूछना था। हाँ बोलिए सर, हम लोग अभी थोड़ा देर पहले पढ़े थे कि वो जो है ना व्हीकल हायरिंग के लिए जो है ना वो जेजी ग्रेड एलिजिबल है, जैसे कोई ब्रेक डाउन साइट्स पे व्हीकल ले जाना है, बहुत स्टाफ को ले जाना है, उन चीजों में क्या है, दैट इज ऑकेशनल हायरिंग बोलते हैं उसको इट इज नॉट ए कंटीन्यूअस हायरिंग, मतलब मंथली हायरिंग नहीं कर रहे हैं। तो ऑकेशनल हायरिंग को जे ग्रेड को पावर्स है वो। ये सर ब्रेक डाउन साइट्स क्या होता है? ब्रेक डाउन मतलब क्या, गाड़ी रुक गई कहीं, गाड़ी डिरेल हो गई, अच्छा, पावर चला गया, उसको ब्रेक डाउन बोलते हैं। ठीक है, उस पर हमारा स्टाफ जाएगा उस गाड़ी में? हाँ, हमारा स्टाफ जाएगा, वो हायर कर सकता है, यू कैन हायर। यस सर। हाँ बताएं, somebody raise the hand। हेलो सर, अपना नमस्ते सर। हेलो नमस्ते, बोलिए सर। अपना कांटेक्ट नंबर दे दीजिए सर, कोई क्वेरी होगा तो व्हाट्सएप करके। इसमें लिखा हुआ है, ये जो मेरा पीपीटी है ना नीचे 9490690320, ये व्हाट्सएप नंबर है सर? हाँ बिल्कुल व्हाट्सएप नंबर है, आप कर सकते हैं। थैंक यू सर। रेलवे बोर्ड में सर ये नोडल अफसर कौन है? ये करेक्शन स्लिप डीजीएमजी इज द नोडल ऑफिसर फॉर एसओपी। अच्छा सर, ठीक ठीक, ओके ओके, थैंक यू सर। The banner will call it a day. So if there are no further doubts, clarifications, we'll wind up the session. On behalf of PIRIFAM Secunderabad, I thank you sir. Thank you sir. Thank you. Taking up the session on MSOP and also latest revision of negative powers of general manager. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Clarified many doubts of the participants. Dear participants, tomorrow we have session on BRS. Login time is 3 p.m. Thank you all. Have a nice day.